Good morning, students. So now today we will start the next part of our chapter carbonates compound. Previously we have discussed about the carbon, that versatile nature of carbon, means carbon can link with many other compound. So when carbon link with many other elements, it form many compounds. So we will discuss here the organic compound which is given a fact file. In the initial stage, that organic compound can only be extracted from the living things. Clear? But after the research of the scientist, it is found that the organic compound can also be prepared in laboratory. The first organic compound prepared in laboratory is urea. Its formula is NH2CONH2. This is the first organic compound which is prepared in laboratory. Clear? So what are organic compounds? Initially the organic compound are those compounds which are extracted from the living things, and it is thought that for the synthesize for the organic compounds, to synthesize the organic compound, a vital force are required. But in 1828, the first organic compound is prepared in laboratory, that is urea. Clear? So urea is the first organic compound which is prepared in laboratory. Urea is the first organic compound which is prepared in laboratory. It is prepared from the ammonium cyanide. इसको अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था. तो ये था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. वी हैव डिस्कस्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. In the previous video, I have discussed with you that the carbon can form compound with many other elements, but in 10th class we have discussed only with hydrogen. Clear? So we will discuss the saturated and unsaturated hydrocarbons. We have also discussed in the previous video hydrocarbons. The compound of hydrogen and carbon is called hydrocarbons. So now today in this part we have to discuss about the saturated and unsaturated carbon compounds, saturated or unsaturated hydrocarbons. So in the previous video we also discussed that carbon can link with itself by a single bond, by a double bond and by a triple bond. So carbon can form single bond, carbon can form double bond, and carbon can also form triple bond. So when carbon forms single bond, means when the two carbon are linked with a single bond, so this type of carbon compounds, the compound in which carbon is linked with carbon by a single bond, is called saturated. So this is called saturated. If carbon linked with another carbon by the double bond or by the triple bond, so this is called unsaturated. So this is the first definition about the saturated and unsaturated. So saturated compounds, carbon compounds, are those carbon compound in which carbon is linked with another carbon by a single bond. कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कार्बन से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड के साथ, उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं. और जिसके अंदर कार्बन कार्बन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड से जुड़े या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, उसको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. तो ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन थी. अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, अगर कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड. वन मोर पॉइंट दैट कि सैचुरेटेड आल्सो नोन एज एल्केन. सैचुरेटेड को हम एल्केन कहते हैं. अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एल्केन. इफ कार्बन एंड कार्बन इज लिंक्ड विद अ डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन. क्लियर? एंड इफ कार्बन एंड कार्बन लिंक विद ईच अदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नोन एज एल्काइन. So this is another identification of single bond, double bond, triple bond. Single bond, if single bond is present, that is alkane. If double bond is present, that is alkene. If triple bond is present, that is alkyne. More we will discuss about the saturated and unsaturated in detail in the next part. So now we will discuss in detail about the saturated and unsaturated. Definition we have discussed already. Saturated is also known as alkane, and these can be classified as alkene and alkyne. Clear? Then how carbon forms single bond, double bond, triple bond?
And what is the valency, what happen with the valency of the carbon if carbon link with a single bond? We will discuss one example. If carbon and carbon are linked with single bond, here carbon and carbon link with double bond, and carbon link with a triple bond. So in the previous part we have discussed that the carbon will form 4 bond, जो कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है. अब इस केस में इस कार्बन ने और इस कार्बन ने दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया है. इसका मतलब इसका भी एक बॉन्ड बन चुका है, इसका भी एक बॉन्ड बन चुका है. मीन्स देयर आर द डेफिशिएंसी ऑफ 3 बॉन्ड्स. दोनों जगह 3 बॉन्ड की डेफिशिएंसी है. तो ये जो 3 की डेफिशिएंसी है, दिस इज फुलफिल बाय द हाइड्रोजन. मीन्स एक बॉन्ड कार्बन ने अपने साथ बना लिया एक दूसरे के साथ. जो एक बॉन्ड बनाएगा वो बाकी जो रिमेनिंग बॉन्ड होंगे 3 बॉन्ड, अब इसके गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. अब इस केस में देखते हैं, इन दोनों कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं. कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4. तो कितने बॉन्ड की कमी है यहाँ पे? 2 बॉन्ड की. तो अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे. नाउ काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ दिस कार्बन. 1 2 3 4, 1 2 3 4. These are the shared electron which we have discussed previously. Now how many bonds are formed by these carbons? These carbon already formed 3 bonds. So what is the deficiency bond? There is the deficiency of 1 bond in each. So here comes out to be H, here comes out to be H. So in that way carbon link with each other by single, double bond and triple bond, and the deficiency of the bond which are remain is fulfilled by the hydrogens. One more point, कि the saturated have a general formula. What is general formula? CnH2n plus 2. This is a general formula. You have to put just value of n. If n is 1, we put here n1. So C1 H2 into 1 plus 2, so it becomes CH4. This is the first member of alkane. Similarly, the general formula of double bond and triple bond. Double bond means the alkenes. Clear? It's CnH2n and alkyne has CnH2n minus 2. Clear? And one more point, in that case the n value starts from 2, because to form double bond at least 2 carbon are required. But in single this is CH4. In that case C single bond single bond single bond, here comes out to H, here comes out to H, here comes out to here comes out. तो मतलब जो डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन ने बनाना है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 से शुरू करनी है आपने. मीन्स अगर हम बात करें, हमने 4 पॉइंट डिफरेंस 3 पॉइंट डिफरेंस पढ़ लिया दोनों की डेफिनेशन. एल्केन एल्कीन एल्काइन. जनरल फॉर्मूला जो सैचुरेटेड है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n plus 2. और जो अनसैचुरेटेड है वो 2 तरह के होते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे. जो डबल बॉन्ड वाले का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो ट्रिपल बॉन्ड उसका होता है CnH2n minus 2. So these are the general formula of alkane, alkene and alkyne. Means this we have done the general formula of alkane, alkene and alkyne. One more point is left, test. See how will you test the saturated and unsaturated? So once I write there here general formula of alkane. Alkane general formula है CnH2n plus 2, where n जो आपका है 1 से स्टार्ट होगा. तो आपके जो एल्कीन है इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n. यहां पे n जो है वो 2 से स्टार्ट होगा. और जो आपके हैं एल्काइन, एल्काइन मीन्स वो होते हैं जिसके अंदर आपका CnH2n minus 2 और n यहां भी आपका 2 से स्टार्ट होगा. क्लियर? ये आपके हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये है जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और ये आपके कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होंगे सैचुरेटेड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपके कौन से हैं? दीज आर द अनसैचुरेटेड. क्लियर? एंड दिस इज सैचुरेटेड. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. So if we will do the combustion, कि अगर हम कंबस्शन करवाते हैं सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की, अगर हम सैचुरेटेड की कंप्लीट कंबस्शन करवाते हैं, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम. आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस है जब उसको जलाते हैं वहां पे ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है. मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद ब्लू फ्लेम इन द कंप्लीट कंबस्शन.
क्लियर। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज बर्न विद येलो फ्लेम, चाहे वहां पे कंप्लीट कंबल्शन है चाहे वहां पे अनकंप्लीट कंबल्शन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा येलो फ्लेम से ही जलेंगे। लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दोनों फ्लेम है, इनके अंदर येलो फ्लेम भी है और ब्लू फ्लेम भी है। जब कंप्लीट कंबल्शन होगी तो येलो कलर का, जो कंप्लीट कंबल्शन होगी तो ब्लू कलर का फ्लेम होगा। इन केस ऑफ अनकंप्लीट कंबल्शन देयर इज अ फ्लेम ऑफ येलो कलर। एक तो ये टेस्ट का कि दोनों को बर्न करेंगे। एक आपका है ब्रोमाइन वाटर टेस्ट, ब्रोमाइन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमाइन वाटर टेस्ट में क्या है कि हम दोनों की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमाइन वाटर के साथ। अब आपके सामने एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी, दो बॉन्ड, ये दोनों ने एक एक बॉन्ड बनाया, इसके कितने रहते हैं 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, यहाँ पे लिख दिया Br2, क्लियर। यहाँ पे आएगी नो रिएक्शन। अब जो सैचुरेटेड आपके हैं, इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्रोमाइन वाटर, क्लियर। ये ब्रोमाइन वाटर के कलर को चेंज नहीं करते। बट आपके जो अनसैचुरेटेड हैं, अब इन्होंने कलर चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे रिएक्शन ही नहीं हुई इनकी, इसलिए यहां पे है नो रिएक्शन, मींस डजंट चेंज द कलर ऑफ ब्रोमाइन वाटर, डिडंट डिसकलर द कलर ऑफ ब्रोमाइन वाटर। बट इफ दे आर द अनसैचुरेटेड मींस विच कंटेन डबल बॉन्ड, सो दिस इज डबल बॉन्ड हियर। सो अब अगर हम देखते हैं, दो बॉन्ड इन्होंने आपसे बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया था। अब ये आपके थे अनसैचुरेटेड, क्लियर। ब्रोमाइन वाटर से टेस्ट करवाया। अब यहां पे आपकी नो रिएक्शन नहीं आएगी। यहां पे क्या होगा कि दिस डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन इनटू सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड टूट हो गया। और जब ये सिंगल बॉन्ड में टूटा तो आपको पता है यहां पे एक एच था, यहां पे एक एच था, यहां पे एक एच था और यहां पे एक एच था। लेकिन इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड तो पूरे करने ही करने हैं। लेकिन अब कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो वो जो 2 बॉन्ड इनके बचे हैं, एक इसका और एक इसका, दिस इज फुलफिल बाय द ब्रोमाइन। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। इसका मतलब जो आपके अनसैचुरेटेड थे उसके अंदर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में टूटा, और सिंगल बॉन्ड में टूटा तो ब्रोमाइन वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक टेस्ट है किसका, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, होगा ब्रोमाइन वाटर टेस्ट, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इट डिडंट गिव द रिएक्शन विद ब्रोमाइन वाटर और इट डिडंट चेंज द कलर ऑफ ब्रोमाइन वाटर। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, वो ब्रोमाइन वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं, मींस जो ब्रोमाइन वाटर का कलर है वो डिसकलर हो जाता है। तो ये हमने कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस किया था। नाउ विल इन डिटेल विल डिस्कस विद दिस जनरल फॉर्मूला। मैं सबके आपके लिए एक 2 डायग्राम बना के दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्मूलास विच वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड। तो आपने कंपाउंड कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका था CnH2n+2, ये आपका है सिंपलेस्ट, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, इसको कहते हैं एल्केन। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे n को 1 पुट कर दिया। जब n को 1 पुट करेंगे तो C यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 2 4, ये 4 आ गया आपका, ये पहला था। जब n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C2, फिर 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे H6 आ गया, क्लियर। सिमिलरली अब सीधा यहाँ पे C3, इसका क्या है, इसके डबल से 2 ज्यादा, यहाँ पे क्या आएगा H8, फिर C4 है, तो जो हाइड्रोजन होंगे इसके डबल से 2 ज्यादा, डबल कितना 8 8 10। ये कुछ आपको मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, अब इनके मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि हाउ दीज आर लिंक। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले तो यहाँ पे एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, तो ये तो सिंपल जुड़ जाएगा ऐसे करके, H H और H। अब यहाँ पे 2 कार्बन, क्लियर, 2 कार्बन है। ये किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड का है, क्या आपका एक सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के केस में कार्बन कार्बन में क्या बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन है 6, इसके कितने बॉन्ड रहते हैं 3, इसके कितने रहते हैं 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब C3H8, तो 3 कार्बन लगाओ पहले, 1 2 3, कौन सा है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, क्लियर। अब पूरे करने अपने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो अगर देखा जाए तो इसके कितने बॉन्ड रहते हैं, 1 2 3 रहते हैं, इसके कितने रहते हैं 1 2 3, और इसके कितने रहते हैं 1 2 1 2, क्योंकि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा H H H H H H H और यहाँ पे भी H। आफ्टर दैट नेक्स्ट केस इज इफ देयर आर 4, तो 1
2 3 4 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो इसका एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन का, तो 3 बॉन्ड 1 2 3, इसका 1 2 1 2 1 2 3, बाकी ये सारी पोजीशन कौन फुल करेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो हाइड्रोकार्बन की बात है। अब इसके बाद अगर हम डबल बॉन्ड वाली बात करते हैं तो डबल बॉन्ड का क्या होगा कि इफ कार्बन एंड कार्बन आर लिंक विद अ डबल बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से लिंक होंगे तब क्या होगा? क्लियर? तो यहां पे आपका आएगा CnH2n। तो मैंने कहा था कि जो n है वो 2 से शुरू होगा ना कि 1 से, क्योंकि आप यहां पे 1 पुट कर देते हो C1 क्लियर H2, तो CH2 कोई भी कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? क्योंकि कार्बन 4 बने होते हैं तो 2 ही बने हैं। तो मीन्स इफ यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड एटलीस्ट 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे आपका आएगा C2H4 C2H4। क्लियर? तो 2 कार्बन लगाए, 1 और 1 2, कितने हाइड्रोजन? 4। तो मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये H है, ये H है, ये H है और ये H। अगर आपसे पूछे इन दोनों कार्बन कितने कितने बॉन्ड रहते हैं, 2 इसने बनाया 2 इसने, तो दोनों के 2 रहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर? अगर मैं 3 पुट कर देता हूं C3H6 C3H6। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा 1 2 3। किसी भी कार्बन कंपाउंड को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए सिर्फ एक ही जगह पे डबल बॉन्ड काफी है, ये नहीं कि हमें हर जगह पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अगर पूरी की पूरी एक चेन में अगर कहीं एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। तो आपको पता है ये अनसैचुरेटेड है, तो इस केस में सिर्फ आपको एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाना है। मान लो मैंने यहां पे लगा दिया, तो हाउ मेनी बॉन्ड? कार्बन फॉर्म 4, तो दिस कार्बन हाउ मेनी फॉर्म? 2 ऑलरेडी फॉर्म, तो 1 2। क्लियर? अब एक जगह डबल लगा दिया, बाकी जगह अपने कोई डबल नहीं लगाना, उसकी जगह उसके पास सिंगल ही बॉन्ड लगेंगे हर जगह। ये सिंगल आ गया तो इसने कितने 3 बना रखा है, तो इसका एक बॉन्ड आएगा। इसने एक बना तो इसके 1 2 3। अगर मैं लिखता हूं H H H H H, तो नाउ काउंट द 3 2 5 एंड 1 6। मीन्स आपको किसी को अनसैचुरेटेड बनाने के लिए एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ सकते हैं, एक से ज्यादा डबल, लेकिन कम से कम एक बॉन्ड ही काफी है किसी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। अब एक हम ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे डिस्कस करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का देखो, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला था वो भी आपका किसका एग्जांपल था? अनसैचुरेटेड था वो। क्लियर? तो उसका जनरल फॉर्म था CnH2n-2। तो हमने कहा था इस केस में भी n 2 से शुरू होगा। क्लियर? क्योंकि कार्बन कम से कम 4 बनवाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे आपका अगर 1 आएगा तो कार्बन अकेला ही आएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 माइनस 1 2 में से 2 गया 0, तो C अकेला आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा आपका C2H2। क्लियर? अभी कैसे एग्जिस्ट करेगा C2H2? तो आपने लिखना 2 कार्बन, 1 और 1 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो भी एक इस पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया, दोनों ने कितने बॉन्ड बना लिए? इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बन चुका है। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो दोनों कितने की डिस्टेंस है? 3 की, तो 1 2 3। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं तो यहाँ पे आएगा आपका C3 सॉरी C3 3 2 6, यहाँ पे आएगा 4। अब यहाँ पे क्या 3, तो 1 2 3। अब इसको अनसैचुरेटेड बनाने के लिए आपको किसी भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कहां लगाया? मैंने यहां लगा दिया 1 2 3। अब ये एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसने 3 ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो एक H यहां पे लग जाएगा। इसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, मींस सिर्फ एक ही जगह पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, उसके ज्यादा कहीं पे नहीं लगाना, बाकी सिंगल बॉन्ड ही लगेगी। अब यहाँ पे इस कार्बन ने 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्लियर? इसके और बॉन्ड नहीं बनेंगे तो इसके ऊपर नहीं आएगा। अब इसने कितने बना रखा है? 1, तो इसके ऊपर 1 2 और ये 3। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4। So in that way carbon link with hydrogen and link with each other by the single bond, double bond and the triple bond. अब जो कार्बन है आपका वो लिंक कैसे होगा? अब लिंक कैसे होगा अब हम उसको डिस्कस करेंगे। कार्बन का लिंक विद ईच अदर इन द 3 वे। 3 तरह से वो लिंक होगा। कैसे लिंक होगा? इट कैन लिंक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन एंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। मींस कार्बन कैन लिंक इन
चेन, चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, उसके बाद ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं, क्लियर, और रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमने डिस्कस करना है कि चेन कैसे होगी, ब्रांच कैसे होगी, रिंग कैसे होगी। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया था ये वाला, ये एक सिंपल चेन है, इसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 1 2 3, इन दैट वे स्ट्रेट चेन आ गई। अब इसको ब्रांच कैसे बनाना है हमने, अगर यहाँ पे एक कार्बन और लग जाए, क्लियर, ये एक मेन चेन है, इसके साथ ये आपकी एक मेन चेन है, और इस मेन चेन की एक ब्रांच है, मीन्स कार्बन ब्रांच की फॉर्म में भी लिंक हो सकता है। और तीसरा रिंग की फॉर्म में भी लिंक हो। रिंग कैसे, जैसे अब ये 4 कार्बन है, अगर इनको रिंग बनाना है तो 1 2 3 और ये 4, ये रिंग की फॉर्म में आ गया। मान लो 5 कार्बन है आपके, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। जब कार्बन आपका रिंग की फॉर्म में होगा तो इसको बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो। मीन्स व्हेन कार्बन आर अरेंज इन दी फॉर्म रिंग, दैट इज साइक्लो। साइक्लो उसके यार नाम लग जाएगा साइक्लो के साथ। नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस से कट चुका है, अब उसके अंदर डीप में हमने जाना नहीं है, क्लियर। तो लेकिन जब आपका कार्बन के केस में क्या होगा, जब आपके कार्बन के केस में 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, रिंग की फॉर्म में रेंज है, और अल्टरनेट पोजीशन पे, मींस एक जगह छोड़ के डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने 1 2 3, तो यहां पे कैच लगेगा, 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 और यहां पे कैच लगेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहेंगे। मींस व्हेन द कार्बन रीअरेंज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ 6 कार्बन विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, कि 6 कार्बन की रिंग है और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो उस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे स्ट्रक्चर को हम, बेंजीन। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन। तो दिस स्ट्रक्चर को हम बेंजीन। अब याद रखना है कि अगर कार्बन 6 कार्बन की रिंग है, क्लोज स्ट्रक्चर और अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अब जो नहीं कि यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहां पे और यहां पे भी हो सकता है। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात की, कुछ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की बात में बारे की। तो यहां तक आपने इसको देखना है, कंप्लीट करना है। इसके बाद आपकी एक वीडियो और मिलेगी आपको, उस वीडियो में हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उसको शेयर करना है, ताकि हम उस डाउट को क्लियर कर सकें। वीडियो को पूरा देखो, वीडियो देखने के बाद अपना नाम और आपको समझ में आया है या नहीं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर इतना हो गया, समझ में नहीं आया या आया नहीं है, यहाँ पे डाउट है, ये डाउट हमारा क्लियर करो। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अप टू नाउ टुडे यू हैव टू कंप्लीट इट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।